हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हैं? कैसे क्लियरली उन सब की प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं ना, उसको हमको यहाँ पे समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन इंडियन इकोनॉमी द स्मॉल स्केल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स। टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स के द्वारा वो कोऑर्डिनेशन सेटअप करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज टेकन अप द नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट देम। इनको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे मेजर स्टेप्स ले रही है जिसके द्वारा इनको प्रमोट करा जा सके। However, with the recent measures, the small scale and the cottage industry is facing both the internal competition as well as the external competition. कोई ना कोई internal या फिर external competition वो face कर ही रही है। There is no clear distinction between the small scale and the cottage industry. Small scale या cottage industries में कोई भी difference नहीं है। However, it is generally believed that the cottage industry is one of the which is carried on wholly or primarily with the help of the members of the family के members के according ही वो established हो रखी है। As against this, the small scale industries have employees hired labor, employees hire करते हैं सारे laborers को। Moreover, the जितनी भी हमारी industries है generally associated with agriculture, ज़्यादा से ज़्यादा industries associated है यहाँ पे agriculture के अंदर। Subsidy employment in the rural areas, या फिर rural areas के अंदर कोई ना कोई subsidiary company किसी भी बड़ी company की। As against the small scale units are mainly located in the urban areas as a separate establishment। इसलिए जितनी भी small scale units है ये basically urban areas के अंदर ही established होते हैं। Definition देख लेते हैं। The official definition of the small scale units, कुछ definitions हमारे यहाँ पे दे रखी है। These are the industries undertaking having the fixed investment, जहाँ पे fixed investment plan हो in plant and machinery with whether the ownership basis or the lease basis, चाहे वो ownership के अंदर हो, चाहे वो lease के अंदर हो, चाहे वो hire purchase के अंदर हो, ये 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Ancillary industries, these are the industries undertaking having the fixed investment in the plant and machinery not exceeding 1 करोड़, जहाँ पे plant and machinery का जो भी investment है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। Engaged in or proposed to engage in the manufacturing of the plant's components, sub assemblies, tooling or the intermediaries, or the rendering of the services supplying 30% of their production or the services, 30% अपने production या services का या other units का production का इन articles के अंदर। Tiny units, these refers to the undertaking having the fixed investment of plant and expending not exceeding 23 लाख से ज्यादा नहीं होता है। These also include undertaking for providing the services such as the laundry हो गई, xeroxing हो गई, repairs and maintenance हो गया customers का, equipment, machineries, hatching, poultry farms हो गए। ये population जहाँ पे 50,000 से कम है वहाँ पे होती है। Small scale services establishment, these means the enterprises engaged in the person or the household services, या तो enterprise personal या फिर household services के अंदर engaged है in the rural areas and towns with the population not exceeding 50,000, जहाँ पे population 50,000 से ज्यादा की नहीं है, and having the fixed investment in the plant and machinery not exceeding 25 lakhs, यहाँ पे fixed investment जो है plant and machinery के अंदर वो 25 लाख से ज्यादा नहीं है। Household industries, these covers the artisans, skilled craftsmen and the technicians who can cover in their own houses if their work requires less than 300 square feet, जहाँ पे 300 square feet से कम के अंदर काम किया जा रहा है। less than 1 kilowatt power, less than 5 workers, 5 से कम वर्कर है, कोई भी pollution नहीं है। handicrafts हो गए, toys हो गए, dolls हो गए, small plastics हो गए, paper products हो गए, electronics हो गए, electric gadgets हो गए, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे इस इंडस्ट्रीज के। प्रॉब्लम्स जो भी फेस करी जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। सम ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या-क्या प्रॉब्लम है? May be considered as one man show as the most these units are set up by the individually promoters or the entrepreneurs। promoters या entrepreneurs ही enjoy करते हैं इसको। सारे इंडिविजुअल्स कम टू द मार्केट विद देयर पर्सनल ईगोस और आइडियाज से मार्केट में आते हैं। प्रोजेक्शन एटीट्यूड्स एंड इनइफेक्टिव डेलीगेशंस इनइफेक्टिव होते हैं। इट इज द माइंडसेट, करेज एंड द विजन ऑफ द ओनर्स व्हिच डिफाइन द रेट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी के प्रोग्रेस को ओनर्स ही डिफाइन करते हैं। एंड दीस फैक्टर्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल एंड द फैमिली रिक्वायरमेंट। पर्सनल और फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये फंक्शंस हमारे परफॉर्म होते हैं। द डीलिंग्स इन दीस यूनिट्स आर इन्फॉर्म्ड इन द नेचर के अकॉर्डिंग ही इनकी सारी डीलिंग्स चलती है। ऑल्सो द प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज नॉट सिस्टमैटिक। प्रोडक्शन मैकेनिज्म भी सिस्टमैटिक नहीं होता, कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती है। देयर इज नो प्लान आउटले टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को बिल्ड अप करने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। हेजी नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोसीजर्स आर फॉलो टू अचीव द अनक्लियर टारगेट्स इन एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर बजट एलोकेशन। प्रॉपर तरीके से बजट को भी एलोकेट नहीं कर पाते हैं। देयर एग्जिस्ट नो रियल अकाउंटेबिलिटी एंड द लैक ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज नहीं होती, लैक हो जाता है सारे कामों का।
स्मॉल यूनिट्स फोकसेस ऑन रेजिंग द शॉर्ट टर्म गेन्स को ही वो फोकस करते हैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। रादर अ पेनी वाइज पाउंड फुलिश अप्रोच भी यहाँ पे सेट है। देयर एग्जिस्ट द पर्सनल लॉयल्टी इन द स्मॉल यूनिट्स के अंदर जितनी भी पर्सनल लॉयल्टी है, पर द लॉजिकल रीजनिंग, करियर प्लानिंग एंड द मोटिवेशन आर जनरली नॉट फाउंड। यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। ऑल्सो पे स्केल्स आर लोअर, गुडविल एंड द जॉब सिक्योरिटीज आर लेस एक्सटेंड। जो पे स्केल है वो भी बहुत कम है, गुडविल और जॉब सिक्योरिटीज भी बहुत कम है। इन मेनी इंस्टेंस द बिजनेस आइडियाज एंड द एक्सपोजर्स आर नॉट अप टू द डेट। बिजनेस आइडियाज अप टू डेट नहीं होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही कम अंडरस्टैंडिबिलिटी के साथ होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। मार्केट बिजनेस रिमेन कन्फाइंड विद द लोकल और द रीजनल मार्केट। बिजनेस एकदम लोकल और रीजनल मार्केट के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करता है। इवन आफ्टर फेसिंग द सीवियर इंटरनल चैलेंजेस, बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी सम ऑफ द बिजनेस यूनिट्स सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट प्राइमरली। कुछ बिजनेस यूनिट्स होती हैं जो प्राइमरी सर्वाइव कर जाती है, ईदर ओन्ड और ट्रस्टेड genuinely. Most of the players witnesses the limited progress due to the in करेक्ट अप्रोच। इनकरेक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग बहुत सारी लिमिटेशंस यहाँ पे आ जाती है, फॉलोड बाय दैम एन इफेक्टिव टीम वर्क, जहाँ पे टीम वर्क ही इफेक्टिव नहीं होता है। सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज आर डिस्कस्ड बिलो। सर्वेस ऑफ द मटेरियल एंड द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्रीज टू आइडेंटिफाई द रीजंस और द एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज की जो भी सर्विसेज होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट के अंदर आइडेंटिफाई करना सारे प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड द इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना, उसको इवैल्यूएट करना, फाइनेंशियल एंड द क्रेडिट सपोर्ट टू द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द एप्लीकेशंस सच एज द डिजाइनिंग ऑफ द प्रोटोटाइप मशीन्स को डिजाइन करना, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, सारे रिसोर्सेज को, रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द एप्रोप्रिएट एरियाज, बहुत सारे एप्रोप्रिएट एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी मैनेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल फॉर्मेशन को देख के आना, लिंक करना लार्ज इंडस्ट्रीज को स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ साथ, नेशनल हो चाहे वो रीजनल हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, क्वालिटी कंट्रोल करना, टेस्टिंग करना, सारी फैसिलिटीज को, मार्केट को प्रमोट करना, चाहे वो डोमेस्टिक का हो चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट का काम हो, प्रिक्योर करना फॉर नई मटेरियल्स और नई इक्विपमेंट्स को प्रिक्योर करना, मेंटेन रखना, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च करते रहना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सारी टेक्नोलॉजी और मार्केट की, आइडेंटिफाई करना असिस्टेंस को एंटरप्राइज के जो कि एक्सपीरियंस और डिफिकल्टीज के साथ आ रहा है, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स के अकॉर्डिंग, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग, इंसेंटिव मेजर करना इंडस्ट्रीज को और बाय द एरियाज को, लोकल इनिशिएटिव लेना, क्रिएशन करना सारे इंस्टीट्यूट को और चेंजेस जो भी प्रिवेल कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, रीजनल और इंटरनेशनली टेक्निकल और फाइनेंशियली असिस्टेंस लेके आना, कोऑपरेशन जो भी सेट करना है सारी डेवलपिंग कंट्रीज का उसके हिसाब से वो सेट करना। तो ये सारी चीजें हमने स्मॉल स्केल यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में समझ लिया है। थैंक यू सो मच।